शत्रु कृता मैत्र्यो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय नाचाप्स्यत् पित्रौ सौबलिं च। Translation. Maharaj Yudhishthir, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to the sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to Brahmanas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncles or aunt, the daughter of King Subala. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. You want to read, Mataji? Yes, I'll read. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaja Yudhishthir was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties for the householders. The householders are required to rise early in the morning, and after bathing, they should offer respects to the deities at home by prayers, by offering fuel in the sacred fire, by giving the Brahmanas in charity land, cows, grains, gold, etc., and at last offering to the elderly members due respects and obeisances. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. Modern householders are practiced to different modes of life, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned above. The household children are taken to practice when what the parents practice, and therefore the whole generation glides towards hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. Like the Dhritarashtra, the materialistic person may take lessons from a sadhu like Vidura, and thus be cleansed of the effects of modern life. Maharaja Yudhishthir, however, could not find in the palace his two uncles, namely Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari, the daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Dhritarashtra. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी धृतराष्ट्र और गांधारी महल छोड़कर चले गए हैं। तो अब जब महाराज युधिष्ठिर नेक्स्ट रात को ही चले गए, ठीक है, बिना किसी को बताए, जैसा कि विदुर ने कहा था। तो विदुर के साथ ही गए एक्चुअली, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग युधिष्ठिर महाराज उठे। अब नेक्स्ट भागवतम देखो कितनी डिटेल्ड है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर उठे और उठ के उन्होंने क्या किया। पहले तो उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, अजात शत्रु हुज एनिमी वाज नेवर बॉर्न, ठीक है। अजात शत्रु मतलब उसका एनिमी पैदा ही नहीं हुआ, which means कि ही इज सुहृद सर्वदेही नाम। साधु की छह छह क्वालिटीज बताई गई हैं भागवतम में। तितिक्ष्वा कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शांताः साधु साधव भूषण। साधु के छह आभूषण हैं, क्या हैं? तितिक्ष्वा पेशेंट, कारुणिकाः कंपैशनेट, सुहृद सर्वदेही नाम सभी लोगों का बेस्ट फ्रेंड, एंड अजात शत्रु जिसका एनिमी ना हुआ हो, और शांत ऑलवेज काम,
नेवर एजिटेटेड, कभी गुस्से में नहीं होता। ठीक है। तो अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज वॉज अ साधु। इवन कौरव भी उनको प्रणाम करते थे आकर, वो भी उनसे द्वेष नहीं करते थे। जैसे अर्जुन और भीम के साथ तो काफी उनके साथ वो होता था, बट नेवर विद युधिष्ठिर महाराज। उनका कंडक्ट ही ऐसा था कि नो वन यूज टू हेट हिम और एनिमी हिम। ठीक है। तो he was whose enemy was never born, then performed his daily morning duties। अब मॉर्निंग ड्यूटीज पे है ये पूरा वर्स। प्रभुपाद ने इसी को ही, क्योंकि यही उसमें सुखदेव गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि क्या करते हैं वो सुबह उठकर। ठीक है। परफॉर्म्ड हिज डेली मॉर्निंग ड्यूटीज। क्या है ड्यूटीज मॉर्निंग? प्रेइंग, सबसे पहले उठकर नहाओ और चैंटिंग मॉर्निंग में। दिस इज व्हाट युधिष्ठिर महाराज यूज्ड टू डू। फिर ऑफरिंग फायर सेक्रीफाइस टू द सन गॉड एंड ऑफरिंग ओबेसियंसेस। अब ऑफरिंग ओबेसियंसेस में किसको ओबेसियंसेस? भगवान को और अपने एल्डर्स को। तभी वो उनके कक्ष में गए धृतराष्ट्र के, और उन्होंने जाके उनको सुबह जाके उनको प्रणाम करने गए और देखा वो है नहीं। देन ही बिकम एंग्शियस। ठीक है। ऑफरिंग ओबेसियंसेस एंड ऑफरिंग ग्रेन्स, काउज, लैंड, गोल्ड टू ब्राह्मणास। हर रोज, डेली, डेली की चैरिटी। कैन यू इमेजिन? डेली जैसे चैंटिंग करते हैं, डेली फायर सेक्रीफाइस, और डेली की ये काउज, लैंड और गोल्ड टू ब्राह्मणास एवरी डे। कैन यू इमेजिन? विच मी यहाँ हमारे इस्कॉन में भी है ना, डेली वर्षा पूजा, $2 की, $5 की, $10 की। तो डेली हमें देना चाहिए। वी शुड सब्सक्राइब, वी शुड सब्सक्राइब टू दैट, कि हमारे, क्योंकि हम डेली अर्न कर रहे हैं कि नहीं अर्न? ऑफिस जाते हैं हर रोज, तो डेली की अर्निंग तो है, तो डेली की चैरिटी क्यों नहीं है? वो भी होनी चाहिए, इजंट इट? तो युधिष्ठिर महाराज डेली काउज, लैंड, गोल्ड देते थे ब्राह्मणों को। ही देन एंटर्ड द पैलेस टू पे रिस्पेक्ट्स टू द एल्डरली। ठीक है। पहले ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट पे किया, फिर एल्डरली को। ठीक है, अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको। और फिर उसने देखा कि कोई था नहीं वहां पर, ना अंकल्स थे उनके, ना ताया जी थे, ना चाचा जी थे, ना चाची जी थे, ताई जी थे। ठीक है। धृतराष्ट्र, विदुर एंड गांधारी छोड़ के चले गए पैलेस। देन परपोर्ट में अब क्या बोल रहे हैं? ठीक है। बेसिकली युधिष्ठिर महाराज इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द गृहस्थास, फॉर ऑल द हाउस होल्डर्स, कि कैसे एक हाउस होल्ड लाइफ जी जाती है। हम्म, क्या रूटीन होना चाहिए हमारा डेली का? वी हैव टू राइज अर्ली। आपका दिन बड़ा हो जाता है अगर आप जल्दी उठते हो तो। अभी हम काफी दिनों बाद मंगला गए संडे को, तो संडे खत्म ही नहीं हो रहा था। नहीं तो संडे कब स्टार्ट होता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? लेट उठते हैं, फिर चैंटिंग, फिर ब्रंच होता है, परांठे खाते हैं, तो इतने में 12, 1, 2 ऐसे ही बज जाते हैं। चलो दिन खत्म। बट उस दिन हम मंगला गए, इतना बड़ा दिन लगा। हम मंगला भी चले गए, उसके बाद घूमने भी चले गए, घर आके बच्चों के साथ खेल भी लिए, पढ़ाई भी कर ली, आरती भी कर ली। रात को विंडम सेंटर भी चले गए, वहां पर भी जाके दीपदान कर दिया। तब भी लग रहा था कि अरे अभी तो दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सुबह जल्दी उठकर मंगला गए। वहां जाकर हमने भगवान सम सिद्धि हरितोषणम, कृष्णा बोलते हैं मैं समय हूँ, काल ओस्मि। भगवत गीता में बोल रहे हैं कृष्णा काल ओस्मि। तो सबसे पहले अगर जाके हमने कृष्णा को ही प्रणाम कर दिया, कृष्णा को मिल लिए सुबह सुबह उनके बेडरूम में जाकर, तो क्या हुआ? उन्होंने आपकी लाइफ में टाइम ही टाइम भर दिया। ठीक है ना? तो दिस इज अ डेली रूटीन होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज तो बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस देते हैं कि एवरी डे यू शुड डू मंगला, मंगला आरती, पूरा पूरा रूटीन। अगर आप मंदिर से दूर हो, नहीं जा सकते, तो डू इट एट होम, डू इट एट होम। ठीक है ना? फिर जैसे मैंने बताया कि गृहस्थ आश्रम है तो चैरिटी करनी चाहिए। फिर शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। अगर हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, दैट गिव्स हार्मनी इन द हाउस। हार्मनी रहती है घर में एल्डर्स के साथ। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट विद देम
and they will start speaking, they will start filling in you with a lot of wisdom. ठीक है, कभी भी आप देखना किसी भी बड़े बुजुर्ग के पास बैठोगे, आपको बात कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही लग जाएंगे। और वो आपको इतनी विजडम, उनकी लाइफ के, उनके टीचिंग्स हैं, उनके लाइफ के लेसन्स हैं, उनके विजडम है, उनके पास बहुत कुछ है, हमें सीखना चाहिए, बट वी डोंट हैव टाइम, सॉरी। और पहली बात तो एल्डर्स ही नहीं है। अब आजकल के ऑस्ट्रेलिया में किसके घर में है? बहुत रेयर, वेरी वेरी रेयर, जो बहुत ही फॉर्चुनेट सोल हैं जिनके घर पे एल्डर्स हैं। ठीक है ना, नहीं तो वो ही नहीं है। तो फिर अगर एल्डर्स नहीं है तो वी शुड रिस्पेक्ट द लेडी इन द हाउस। लक्ष्मी होती है लेडी। तो अगर लेडी खुश है, अगर लक्ष्मी खुश है, तो अगेन घर में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, हार्मनी रहेगी। ठीक है ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ होम्स जहाँ पर लेडी की रिस्पेक्ट नहीं होती, एंड और वो बर्बाद हो गए हैं वो घर। डाइवोर्सेस हो गए, बच्चे इधर उधर चले गए, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सारी लाइफ तुम्हारी, स्पेशली जो घर है वो लेडी पे टिका होता है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट लेडीज इन केस एल्डर्स आर नॉट देयर, ताकि वो एक ये और ये, अगर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे ना, मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह उठकर मंगला आरती, चैंटिंग, फिर आरती, घर में दिया, दीपदान, ये सब कुछ अगर हम डेली करेंगे तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सतोगुण। पूरा घर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइन ब्लेसिंग्स हम अट्रैक्ट करेंगे व्हेन वी डू दिस। कृष्णा की ब्लेसिंग्स आएंगी घर में, अगर सुबह सुबह हमने पूरे घर का माहौल ही स्पिरिचुअलाइज कर दिया तो। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, क्या करते हैं, पहले तो उठते लेट हैं, उठ के लेट लेट उठने के बाद उनको क्या चाहिए, बेड टी, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्लीनलीनेस और एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए पहले, सबसे पहले चाय अंदर डालनी है अपने, इंटॉक्सिकेशन। ये रूटीन है हमारा। नहाना तो कितने हफ्ते बाद, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ये गोरे तो खैर बहुत कम नहाते हैं, इवन इंडियंस भी हफ्ते बाद नहाएंगे। बच्चों को नहीं नहलाते, खैर ठंड होती है सुबह, बिना नहाए बच्चे स्कूल, अब सोचो, बिना नहाए बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या उनके दिमाग में जाएगा। ठीक है, सो सुबह उठ के नहाना, ये बेसिक है, ये इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग। ठीक है ना, तो बट कलयुग में वी आर नॉट डूइंग दैट, यही करना बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे पहले उठते हैं किसको ओबेसेंसेस पे करते हैं, मोबाइल। सबसे पहले उठ के मोबाइल को प्रणाम, उसके बाद मॉर्निंग टी, बेड टी को प्रणाम, बेड टी पियेंगे, उसके बाद ऑफिस के लिए भाग जाएंगे। नन, नथिंग, मतलब हम, मैं डिवोटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवोटीज तो खैर वी डू चैंट, वी डू टेक अ बाथ, ठीक है, बट अदरवाइज इससे पहले वाली हमारी लाइफ ऐसी थी। मोबाइल तो अभी भी है खैर, तो उठ के मोबाइल, चाय, खाना पिया, खाना पीना खाया, ऑफिस भाग गए, दैट्स इट। नथिंग टू डू विद कृष्णा, नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, नथिंग एट ऑल। तो फिर क्या होगा उससे? कचरा हम पेट में डाल रहे हैं, चाय इंटॉक्सिकेशन, और कचरा हम मोबाइल में देख रहे हैं, सब कुछ कचरा कचरा करके हम ऑफिस चले जाते हैं, और फिर ऑफिस में भी एक दूसरे के ऊपर कचरा डालते हैं। अभी मेरी मीटिंग थी, टीम मीटिंग थी, उसमें टीम मेंबर बोल रहा है मैनेजर को, कहता, क्यों मुझे ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हो, मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ट्रेनिंग लिखी नहीं है। तो मैनेजर बोला, कहता है यार किसी के भी नहीं लिखी, जरूरी नहीं है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही तुम्हें करना है, तुम्हें उससे एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है। कहता, तुझे वकील लगाया है किसी ने यूनिवर्सिटी का, तू इतनी वकालत क्यों करता है यूनिवर्सिटी की? दे स्टार्टेड फाइटिंग इन द टीम मीटिंग। तो उस टाइम मैं यही सोच रहा था, मैं कहा इतना कचरा, जब ये मैं वर्ड्स पढ़ रहा था मुझे वो याद आया कि हम इतना कचरा डाल के हम कैसे मूड में हम जा रहे हैं वहां पर। तो वहां से फिर, और बाय द एंड ऑफ द डे तक आते आते तो हम, हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता है। जॉब करके जब आते हैं हम, उसके बाद क्या हम बच्चों को देंगे, क्या हम घर को देंगे, क्या हम एल्डर्स को देंगे, कुछ भी नहीं रहता है। क्यों? ये सारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाउ यू स्टार्ट योर डे। तभी उन्होंने इतना इस पे स्ट्रेस दिया है। कोई भी चीज भागवतम में ऐसी अननेसेसरी डिटेल नहीं होती है। ठीक है ना,
दिस इज नॉट अन अननेसेसरी डिटेल कि महाराज युधिष्ठिर ने उठ, अभी टॉपिक क्या चल रहा था कि वो घर से चले गए हैं, यहाँ पर क्या बताने लग गए कि उन्होंने अपनी डेली ड्यूटीज परफॉर्म करी। लगता है ना कि एकदम से थ्रेड इधर क्यों हो गया, बट नो, इट इज इम्पोर्टेंट। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो क्या होगा, और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चे देखेंगे, इजंट इट। ठीक है ना। मॉडर्न होम्स में क्या है, आजकल के घरों में सब चीजें हैं लेकिन शांति नहीं है, पीस नहीं है। वाई? क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग दिस मॉर्निंग रूटीन, वी आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग करेक्ट। जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, चाय कॉफी ये सब चीजें। और वो वहां से कैसे आएगा फिर? एक चीज जब हम कल कर ही गलत रहे हैं तो सही कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है, कहता, वी आर नॉट इवन टॉकिंग, दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। वो एक ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, दे आर स्लीपिंग इन डिफरेंट रूम्स। एंड फाइनली अभी उनका भी 1 महीना हुआ है, डिवोर्स हुआ है। तो वाई? क्योंकि वो सारा माहौल ही घर का इतना गंदा हो जाता है व्हेन वी डोंट प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। ठीक है ना। और फिर बच्चे, नेक्स्ट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, द हाउस होल्ड चिल्ड्रन आर टेकन टू प्रैक्टिस व्हाट पेरेंट्स प्रैक्टिस। हम क्या बोलते हैं, चलो चलो बच्चों क्लास लगा लो, चलो ये कर लो। अरे पेरेंट्स देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो भाई। हम्म? तुम तो देखो क्या कर रहे हो। तुम खुद मोबाइल पे हो, बच्चे को बोल रहे हो कि पढ़ ले, वो भी मोबाइल ही देखेगा। तो दे विल प्रैक्टिस व्हाट यू प्रैक्टिस, therefore the whole generation glides towards hell। प्रभुपाद इज सो हार्ड ना। पूरी जनरेशन कहते हैं नरक में जाती है, सब, पेरेंट्स भी, हम भी, हमारे बच्चे भी। क्या देंगे हम? जो जो हमारे पास है वही देंगे ना हम बच्चों को। क्या है हमारे पास? हम अनर्थ हमारे पास है, वही हम आगे दे रहे हैं अपने बच्चों को, इजंट इट। तो और दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड एज वेल, कि अगर मैं, ये तो मेरे साथ भी होता है कि जब मैं घर में, अगर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ ना, द होल हाउस इज रिलैक्स्ड। सब लोग रिलैक्स हो जाएंगे। मैं अगर थोड़ी देर मोबाइल देख रहा हूँ, सब लोग अपना अपना कुछ कुछ पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं अगर टीवी देख रहा हूँ, सब लोग टीवी देखने लग जाएंगे। मैं अगर बाहर खेलने गया हूँ तो सब लोग बाहर खेलने आ जाएंगे। अगर मैं काम कर रहा हूँ सब लोग काम करेंगे। सो एज अ लीडर ऑफ द हाउस, एज अ पेरेंट्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ वी वांट टू कंडक्ट द हाउस, घर को कैसे चलाना है ना। बच्चे तो दे विल जस्ट फॉलो, दे विल जस्ट फॉलो। ठीक है ना। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, और धीरे धीरे सारी जनरेशन इज मूविंग अवे फ्रॉम द धर्म। ठीक है। तो he could not find his uncles, then let's see what he does. Any questions for this verse? Well, very hard hitting, Prabhu. The story. प्रभुपाद यहाँ एडिटिंग, मैं तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। I wish we could even follow 10% of whatever he's preaching. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इट्स टफ, डे इन It डे is आउट इट very इज tough, टफ। Prabhu. That's हम्म। what I know. I was thinking it. I know what is right, but हम्म। it's. I don't know why it is so tough. We have हम्म। done it in our childhood, but I don't अच्छा। know at this point of time. हमने बचपन में तो ऐसे ही पूरी जिंदगी जी है, अच्छा। समय से सारी चीजें करना, डिसिप्लिन में जीना. But वाओ। I don't know why it is so hard to imbibe this at this present. Like, ऐसा आई थिंक क्या वी है? हैव It is. कॉम्प्लिकेटेड अवर लाइफ अ लॉट, वी हैव कॉम्प्लिकेटेड अवर लाइफ अ लॉट। अभी क्या बोल रहे हैं वो देखो, यहाँ पर वर्ड था ना, गुरु वंदना। दिस इज लाइक गुरु वंदना, और आई थिंक एक्चुअली वो भी त्रिसंध्यम, 3 बार हमें, पुराने लोग 3 बार स्नान करते थे। आज की डेट में हमसे 1 बार स्नान नहीं हो रहा है, 3 टाइम्स। और Hmm. अभी तो क्या है, बाथरूम में ऑन करना है और पानी आ जाना है गर्म। उस टाइम पे नदी में जाके वहां से पानी स्नान करके आते थे लोग, 3 टाइम्स। कैन यू इमेजिन हाउ हाउ उस टाइम पे जो फैसिलिटीज थी वो बहुत कम थी। अब बटन दबाना है, वो रोबोट ने वैक्यूम क्लीनर कर देना है, उसने पोछा मार देना है।
कितनी ज्यादा हमारे पास फैसिलिटीज हैं, अगर इफ आई कंपेयर विद ओल्डन टाइम्स, वेरी ओल्ड टाइम्स, जहाँ पर ओके। फैसिलिटीज नहीं थी। लाइट नहीं होती थी घरों में, गांव में लोग सो जाते थे, जैसे ही सूरज ढलता था वो 6-7 बजे सो जाते थे, और 4 बजे उठ जाते थे जैसे ही सूरज उगता था, या सुबह अपने आप नींद खुल जाती थी। ठीक है, तो एंड दे हैव लॉट ऑफ टाइम। 7 बजे लेट के पापा बताते थे, कहते वो लेट जाते थे, और फिर दे यूज टू टॉक, वो क्वालिटी टाइम होता था। अभी वो क्वालिटी टाइम किसने ले लिया? टीवी ने। टाइम तो है अब भी, बट वो टाइम कहाँ लीक हो रहा है, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी। वो यहाँ तो टीवी ले रहा है। अब जब टाइम, जैसे ही हमारे सारे घर के काम हो जाते हैं, टीवी पे बैठो और एक भी मूवी आ गई तो 3 घंटे गए। अब वो तो सोचो 3 घंटे कितने वैल्यूएबल थे जो चले गए। और 3 नहीं है, 3 को मल्टीप्लाई करो अगर तुम 4 लोग हो घर में, 12 आवर्स, 12 आवर्स आर लॉस्ट, पूरा दिन चला गया। 3 3 3 3 घंटे अगर 4 लोग हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, 12 आवर्स आर लॉस्ट इफ वी आर वॉचिंग अ मूवी। सोचो, और वो तो सिर्फ 3 घंटे की मूवी है, और जो शॉर्ट्स में अलग अलग लोग लगे रहते हैं, देयर द टाइम इज गोइंग ऑन। अदरवाइज टाइम की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो लीक हो रहा है टाइम। एवरीवन हैज देयर डिफरेंट डिफरेंट वीकनेसेस विच वी हैव टू सी, कि मेरी क्या वीकनेस है, मेरा टाइम कहाँ लीक हो रहा है, एंड प्लग देयर। आई थिंक कॉम्प्लिकेट किया हमने अपनी लाइफ एज कम्पेयर टू, बहुत इफ आई ज़्यादा। कंपेयर विद माई पेरेंट्स। हम्म। हेलो। उस टाइम पे तो, ओके। हाँ जी। हरे ईशा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ईशा वाज आस्किंग, वो आपने अभी शुरुआत में बोला कि युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र कौन, वो सब महल छोड़ के चले गए, वो उसके लिए वो क्वेश्चन कर रही थी। हाँ हाँ हाँ। वो वो कहाँ क्यों, चले गए? हाँ। कहाँ चले गए? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक वो पिछले वर्सेस में डिस्कस हुआ डिटेल में, कि अब विदुर जो थे वो महाभारत के युद्ध होने से पहले ही जा चुके थे। ठीक है ना, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट महाभारत युद्ध। हम्म, एंड जब वो युद्ध खत्म हो गया तो वो अपनी पिलग्रिमेज से वापस जब आए, तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी उसी महल में हैं, और पांडव पांडव ऑब्वियसली, युधिष्ठिर महाराज इज द किंग, एंड हम्म, वो उसको आके बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को, उसका जो भाई है, विदुर का भाई है ना, बड़ा भाई, तो उसको आके हम्म, बोल रहे हैं कि तू कुत्ते की तरह पड़ा है यहाँ पे। एक्चुअली ही सेड दैट वर्ड, वो श्लोका ऐसे लिखा हुआ है कि तू कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है यहाँ पर, और किसकी रोटियां तोड़ रहा है? भीम की। हाँ, भीम इज काइंड ऑफ ए किंग, राइट? सो हम्म, भीम की रोटियां तोड़ रहा है, और भीम कौन है? जिसने तेरे 100 पुत्रों को मारा है। 100 हम्म, के 100 कौरव को भीम ने मारा था, और हम्म, तू उसी के टुकड़ों पर पल रहा है। शेम ऑन हम्म, यू। मतलब कब तक, बेसिकली वो कह रहा है कि गृहस्थ आश्रम से कब बाहर निकलोगे आप लोग? ओके। देयर इज अ टाइम ना, हम्म, 25 years ब्रह्मचर्य, ईशा। आफ्टर 25 to 50 there is grihastha, 50 to 75 there is vanprastha. Vanprasth means you should leave the householder responsibilities. आफ्टर 50 आपकी आइडियली, दिस इज द आइडियल केस, या ठीक है हाँ। ना, आइडियली यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स। हम्म, कोई भी घर के कामों में आपको एंगेज नहीं होना चाहिए 50 साल के बाद। हम्म, ठीक वन। है, अब आज की एज में 50 इज लिट, यू विल से इट्स बिट टफ, सो हम्म, टेक इट 60। या। तो 60 के बाद तो वी शुड नॉट बी एंगेज्ड इन ये हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल। प्लान योर लाइफ in such a way that you should be able to retire, if हम्म, not by 50, 100% by 60। इतनी सेविंग करो, इतना कुछ somehow plan it। ठीक है, ओजस्वी प्रभु हैं, अब he is saying कि I'm ready to retire, he hit 50 and he said I'm ready to retire at 50 55। हम्म, so he planned his life in such a way कि so that why रिटायर क्यों होना है? यूरोप टूर के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, हम्म, रिटायर होना है कि तुम भक्ति में और ज्यादा तीव्रता या, ला सकें, और हम्म, तीव्रता से भक्ति कर सकें। या, ठीक है, डज दैट हम्म, मेक सेंस? इसीलिए उसने बोला कि अब निकलो यहाँ से, महल के कंफर्टेबल जोन से निकलो, या, और वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। तभी गांधारी साथ में गई। वानप्रस्थ में यू कैन स्टे विद योर वाइफ, बोथ ओके। हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन स्टे टुगेदर एंड दे कैन परफॉर्म देयर भक्ति विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे पोते पोतियां,
हम्म, ठीक है, इन सब का दे हैव नथिंग टू डू, ओनली एक ही काम है उनके लिए, भक्ति। या After that, there is sannyas, which is very, very tough, which is हम्म, not even like possible in Kali Yuga. So at least, but we should strive for वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम में ही नहीं पड़े रहना चाहिए, हम्म, ठीक है, बट जब तक गृहस्थ आश्रम में हो, अपनी ड्यूटीज पूरी निभाओ 100%, हम्म, है ना। या तभी आप उससे निकल पाओगे। अगर आप ड्यूटीज अच्छे से आप नहीं निभाओगे गृहस्थ आश्रम में, यू विल नेवर बी एबल टू गेट एन एग्जिट फ्रॉम द गृहस्थ कैरी ऑन हो आश्रम। जाएगा हमारा ड्यूटी, अभी नहीं किया तो बाद में कैरी ऑन हो जाएगा, वो पेंडिंग में। वो वो पेंडिंग रहेगा, वो आपको करते ही रहोगे आप, 70 हम्म, साल तक आप वही करते रहोगे। तो हम्म, यू हैव टू डू इट इन सच अ वे। तो भक्ति तभी गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज देन धीरे धीरे आप डिटैचमेंट भी लाओगे अपने गृहस्थ जीवन से, और आगे भी प्रोग्रेस कर पाओगे। नहीं तो इट बिकम्स टफ। एकदम कोई बटन नहीं है कि 50 पे आके मैंने बटन दबाया, चलो अब वानप्रस्थ, आई एम गोइंग हम्म, टू वानप्रस्थ। नो, उसकी प्रेपरेशन लगती है। हम्म, 25 साल, जब 25-30 साल जितने भी आप गृहस्थ आश्रम में हो, यू प्रिपेयर फॉर दैट, यू प्रिपेयर फॉर वानप्रस्थ, हम्म, कि क्या होने वाला है, मेरा लॉन्ग टर्म, मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, या पता होनी चाहिए ना मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट आर माय शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हाट आर माय लॉन्ग टर्म गोल्स, दीज हम्म, शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू अस। डज या दैट मेक सेंस? यस या ऑलराइट, चलें आगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट 32। तत्र संजय महाशीनं प्रपच्च चोद विघ्न मानस गावल्कने, क्व नष्टातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। ट्रांसलेशन: महाराज युधिष्ठिर, full of anxiety, turned to Sanjaya, who was sitting there, and said, "O Sanjaya, where is our uncle who is old and blind?" इसका परपोर्ट नहीं है, बट अभी देखो युधिष्ठिर महाराज, दोनों इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। वैसे दो थीम्स हैं इसमें। देखो, युधिष्ठिर महाराज इज फुल ऑफ एंजाइटी जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र नहीं है। हु इज ओल्ड एंड ब्लाइंड, एक तो वो बूढ़े हैं, कहाँ चले गए। सोचो, आपके पेरेंट्स, आप सुबह उठो, आपको अगले दिन आपके पेरेंट्स ना दिखें, जो कि बूढ़े हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट ही इज ब्लाइंड, ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है ना। तो संजय उनका जो असिस्टेंट था, जो उनका सर्वेंट था, ही यूज टू असिस्ट हिम। तो ही आस्क्ड हिम, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, अम्ब च हत्पुत्रात पितृवाय, क्व गता सुहृत् अपि मयि अकृता प्रज्ञे, हता बन्धु च भारया, अस्मा आसम आसं सम्मान शमलं, गंगायं दुःखितोपतत्। Translation: Well, where is my well-wisher uncle Vidura and mother Gandhari, who is very afflicted due to her due to all her sons' demise? My uncle Dhritarashtra was also very mortified due to the death of all his sons and grandsons. Undoubtedly, I am very ungrateful. Did he therefore take my offenses very seriously and, along with his wife, drown himself in the Ganges? Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Anyone wants to read? I can read something. Yeah. The Pandavas, especially Maharaja Yudhishthira and Arjun, anticipated the after effects of the Battle of Kurukshetra, and therefore Arjuna declined to execute the fighting. The fight was executed by the will of the Lord, but the effects of family aggrievement, as they had thought of it before, had come to be true. Maharaja Yudhishthira was always conscious of the great plight of his uncle Dhritarashtra and Aunt Gandhari, and therefore he took all possible care of them in their old age and aggrieved conditions. When, therefore, he could not find his uncle and aunt in palace, naturally his doubts arose, and he conjectured that they had gone down to the water of the Ganges. He thought himself ungrateful because when the Pandavas were fatherless, Maharaja Dhritarashtra had given them all royal facilities to live, and in return, he had killed all Dhritarashtra's sons in the battle of Kurukshetra. As a pious man, Maharaja Yudhishthira took into account all his unavoidable misdeeds.
and he never thought of the misdeeds of his uncle and company. Dhritarashtra had suffered the effects of his own misdeeds by the will of the Lord. But Maharaja Yudhishthira was thinking only of his own unavoidable misdeeds. That is the nature of a good man and devotee of the Lord. A devotee never finds fault with others, but tries to find his own and thus rectify them as far as possible. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो अभी हमने देखा कि वो दोनों निकल गए, धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर विदुर के साथ। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साधु इन अवर लाइफ। ठीक है ना, सेंटली पीपल हमारे लाइफ में होने बहुत जरूरी हैं, ताकि हम, और अभी पिछले वर्सेस में आई डोंट नो वेदर इट वाज डिस्कस्ड और नॉट, कि ही इमीडिएटली टुक दैट एक्शन, ही डिड नॉट थिंक ऑफ दैट। डिस्कस हुआ था क्या लास्ट टाइम, है ना? व्हाई ही टुक इट इमीडिएटली क्यों एक्शन लिया धृतराष्ट्र ने? एनी आइडिया? उनको समझाया तो उसने भी था, कृष्णा ने खुद समझाया है, ठीक है, व्यासदेव ने समझाया, अक्रूर ने आके समझाया, बहुत सारे लोगों ने समझाया उसको कि बेटा तू गलत कर रहा है, धृतराष्ट्र यू आर डूइंग रॉन्ग। और उसने माना भी। धृतराष्ट्र ने कहता, कृष्णा आपके वर्ड्स इतने एनलाइटनिंग है, मजा आ गया सुन के। देन व्हाट, स्टिल वही का वही, बट दिस टाइम व्हाई? I think it was the words, powerful words by Uddhav ji that, convinced him that he has to take a call now. And it was very, क्या कहते हैं, very strongly stated by Uddhav Maharaj. विदुर महाराज, Vidur Maharaj, sorry. हाँ, सो इस बार उसने ही एक्टेड अपॉन इट इमीडिएटली। व्हाई, ताकि अगर वो थोड़ा रुक जाता ना, तो फिर से उस पे वो इतनी हैवी कवरिंग थी कि अगर वो थोड़ा सा कहता कि हाँ अच्छा, आई विल थिंक ओवर इट, आई विल स्लीप ओवर इट, तो बस फिर वो अगले दिन फिर ना जा पाता। ठीक है, सो वी हैव टू एक्ट अपॉन इट इमीडिएटली, एंड ऑफ कोर्स जो प्योरिटी है विदुर महाराज की, नो वन टेकिंग एनी पॉइंट्स फ्रॉम देयर, उनकी प्योरिटी इतनी थी कि वो इमीडिएटली चले गए। बट एट द सेम टाइम उसको भी था कि अगर मैं रुक गया तो, अभी कभी कभी हमें लगता है ना, जैसे अ, प्रभु बोलते हैं कि टेंपल के पास आ जाओ, तो वो बस हाँ हाँ उस टाइम तो लगता है हाँ हाँ टेंपल के पास चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। फिर हम सोचते हैं अरे ये, फिर हम फुस, फिर वापस वही वहीं आ जाते हैं। तो वी हैव टू एक्ट अपॉन इट, एक्ट अपॉन इट। वहाँ पे टेंपल में एक डिवोटी मिले, उन्होंने कहा, मुझे ऐसे ही किसी ने कहा टेंपल के पास आ जाओ, कहते मैं आ गया, बस। ज्यादा सोचा नहीं। तो क्यों, जब हम सोचने लग जाते हैं, हम अपना अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। साधु की बात इमीडिएटली इमीडिएटली मान लेनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जब टेम्पल्स खोलते थे ना, तो जब टेम्पल नए नए खुल रहे थे तो टेम्पल में आते थे, तो जो डिवोटीज को पता चल जाता था, कहते अब प्रभुपाद आए हैं तो 10-15 लोग ब्रह्मचर्य में ज्वाइन कर जाएंगे टेम्पल को। और वो होता था, प्रभुपाद आते थे 10-15 लोग ज्वाइन कर जाते थे। एक पायलट था, वो प्रभुपाद की बुक रीड कर रहा था पूरे, उसने फ्लाइट में ना, ऑटो पायलट पे चलती है फ्लाइट, तो उसने रास्ते में पूरी बुक पढ़ ली प्रभुपाद की, और उसने प्लेन लैंड किया सीधा टेम्पल, दैट्स इट, जॉइन टेम्पल स्ट्रेट अवे। तो बाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो सिंगल फ्लाइट बुक कराते थे, वन वे जाने की, एक आने की वो 3 कराते थे। उनको पता था कि वो 2-3 को साथ में लेके आएंगे। तो विदुर भी ऐसी आए थे, वो अकेले गए हैं 3 लोग। दिस इज हाउ इट शुड बी। तो ऐसे ही हमें अपने घर में साधुओं को बुलाना चाहिए। वी शुड इनवाइट साधुस टू अवर होम, क्योंकि हम नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे कंफर्टेबल। ठीक है ना? तो जब विदुर जैसे साधु हमारे घर में आएंगे, उनकी हम सेवा करेंगे, उनसे हम सुनेंगे, तो हमारे हार्ट प्यूरिफाई होंगे, और धीरे 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 वो डिटैचमेंट होगी। ओजस्वी प्रभु बोलते हैं, कहते हैं वी एवरी वीकेंड, कहते वी शुड कॉल समवन और द अदर एट अवर हाउस, साधुज एट अवर होम। शिला प्रभुपाद के फादर भी बुलाते थे ना, उन साधुओं को बुलाते थे और बोलते थे कि अभय चरण, मेरे अभय को आशीर्वाद दो राधा रानी का। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है कि अब युधिष्ठिर महाराज इज वेरी एंक्शियस कि ये क्या हो रहा है, हाँ? और वो अपने आप को और ज्यादा वो दोष दे रहे हैं
महाभारत के शुरू होने से पहले अर्जुन वॉज वेरी बिविल्डर्ड, है ना, और वो बोल रहा था कि मेरे कारण इतने लोग मर जाएंगे, इतना कंपैशन हो रहा था। और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज वाज लाइक कि मेरी वजह से, मुझे राजा बनाने की वजह से इतने सारे लोग मरे। और अब उनको क्या लग रहा है कि ड्यू टू द डेथ ऑफ, कहते हैं मैंने उनके सारे पुत्र मारे, तो इसीलिए वो घर छोड़ के चले गए और उन्होंने अपनी भी आत्मदाह कर लिया। गंगा में जाके उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और उसका भी ऑफेंस मेरे पे ही आएगा। 100 पुत्रों का तो पहले ही पाप मेरे पे है, जो उनके 100 पुत्र मारे हैं। अब 100 पुत्रों के बाद इनका पाप भी मेरे सिर ही आएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही 100 पुत्र मरे हैं, और उनकी वजह से ही वो गंगा में छलांग लगा के मर गए। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव सो मच लव एंड अफेक्शन फॉर समवन। ठीक है ना, पुराने जमाने में होता था ना कि कोई घर लेट आता था तो हमें चिंता होने लग जाती थी, अरे कुछ हो तो नहीं गया, अरे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका, गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते थे। अब तो व्हाट्सएप है, बंदा मैसेज डाल देता है कि आई एम स्टक इन ट्रैफिक। पुराने जमाने में होता था ना ऐसा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग टू युधिष्ठिर महाराज कि अरे क्या हो गया, वो कहीं मर तो नहीं गए, कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया उन्होंने। ठीक है, दिस वाज हिज दिस इज व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, दीज आर द इमोशंस व्हिच ही इज गोइंग थ्रू। ठीक है, सो मच ग्रेटिट्यूड, एंड ही सेइंग कि आई एम अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल क्यों बोल रहे हैं वो अपने आप को? क्योंकि उनको लग रहा है कि ही इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड अंकल एंड आंट। और वो अंकल वो हैं जिन्होंने उन पे 5 या 10 बार मर्डर अटेम्प्ट किया है, लाक्षागृह, भीम को मारा, हर एक चीज। कितनी बार उन पे मर्डर अटेम्प्ट किया है? वॉज धृतराष्ट्र वेरी गुड अंकल? नो। बहुत अच्छे ताऊजी थे वो? नो, नॉट एट ऑल। स्टिल स्टिल युधिष्ठिर महाराज ने क्या याद रखा कि उन्होंने एटलीस्ट जब वो पांडु के मृत्यु के बाद जब वो जंगल से आए घर पे महल में, उनको एटलीस्ट शेल्टर दिया। ठीक है ना, इतना किया उसने, धृतराष्ट्र ने छोटी सी चीज करी। वो तो कोई भी कर देता, ठीक है ना, और उनका राइट भी था। टिल ही उसने इतनी छोटी सी चीज को याद रखकर बाकी जितने भी फॉल्ट्स, सारी जिंदगी जितने भी फॉल्ट्स किए हैं उसने, धृतराष्ट्र ने, उन सबको साइड कर लिया। इन्यूमरेबल बैड थिंग्स करी हैं उसने, धृतराष्ट्र ने कुकर्म किए हैं पांडवों के साथ। सिर्फ एक चीज अच्छी करी कि शुरू में थोड़ा सा शेल्टर दे दिया, दैट्स इट। उस चीज को याद रखा उसने, एक चीज को, जो अच्छी चीज थी उसको याद रखा। ठीक है, दिस इज द थीम, फॉल्ट फाइंडिंग। हम क्या देखते हैं दूसरों में? फॉल्ट्स, गलतियां। दूसरों को देखते ही हमें क्या दिखती है? उनके अंदर गलतियां। बोलते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। टू एरर इज ह्यूमन। तो हमें गलतियां दिखती हैं लोगों में, वेयर एज युधिष्ठिर महाराज को गलती नहीं दिख रही है, उन्होंने एक अच्छा काम किया वो देख रहे हैं वो। और ये राधानाथ महाराज बोल रहे थे अपने लेक्चर में, कहते हैं ये बिगेस्ट ऑस्टेरिटी है। क्या है बिगेस्ट ऑस्टेरिटी? कि जो बंदा आपको नहीं पसंद ना, उसकी प्रेज करो, उसके अच्छे गुण देखो। सरकास्टिकली नहीं प्रेज करना है कि प्रभु आप तो बड़े बड़े आदमी हो। सरकास्टिकली नहीं करना है, बट एक्चुअल में करना है। यू शुड मीन इट। उसकी अच्छी क्वालिटीज देखो। अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तो वाइफ शुड, हस्बैंड को उसकी वाइफ की अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोच के उसको, अपने फ्रेंड्स को, अपने आप आसपास बताना चाहिए, ताकि वो, दे शुड टेक प्रेसिडेंस रादर देन उसकी बैड क्वालिटीज को। ठीक है ना। शिला प्रभुपाद वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल। उनके पास उनका शिष्य था एक, तो प्रभुपाद के पास बाकी शिष्य ने कंप्लेंट करना है, कहते प्रभु प्रभुपाद, ये जो बंदा है ये ना सेवा करता है, ना ये चैंटिंग करता है, बस मंदिर में बैठ के खाता है, दैट्स इट। कुछ नहीं कर रहा है ये बंदा, कोई सेवा नहीं कर रहा है, ना ये नाम नाम जप कर रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा, कहते बट ही इज बेटर देन मी। सब लोग हैरान रह गए, अरे प्रभुपाद से भी बेटर, ऐसा कैसे? कहते 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 अगर मैं चैंट ना करूं और मैं सेवा ना करूं तो आई विल फॉल डाउन इमीडिएटली। कहते बट ही इज नॉट फॉलिंग डाउन, विच मीन्स ही इज बेटर देन मी। बिना चैंटिंग किए और बिना सेवा किए ये बंदा सरवाइव कर रहा है ना, विच मीन्स ही इज बेटर देन मी। कैन यू इमेजिन किस लेवल पे जाके प्रभुपाद इज नॉट लुकिंग एट द फॉल्ट्स। वॉज इट इजी टू प्रीच हिप्पीज? ठीक है, मैरिजुआना, ड्रग्स, LSD,
क्या नहीं करते थे वो, ठीक है ना। स्टिल स्टिल प्रभुपाद प्रीच देम। और ऐसा नहीं है कि सब भक्त बन गए जी जाकर, नो, बहुत सारे फॉल ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारे बीच में से गिरे हैं, बट नो, प्रभुपाद ने किसी को ऐसे पकड़ के नहीं बोला। एक बंदा रोज मारियाना लेके आता था, प्रभुपाद ने उसको बोल दिया कि आई विल रिजेक्ट यू अगर तू दोबारा मैंने तेरे को देख लिया, ठीक है, तू ये पी के आया तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पास में बैठे थे, उन्होंने पूछा प्रभुपाद विल यू रियली रिजेक्ट हिम, प्रभुपाद सेड नो। कैन यू इमेजिन, तो इतने कंपैशनेट। तो सेम विदुर, सॉरी युधिष्ठिर महाराज, ही वाज सो कंपैशनेट, ठीक है, कि वो चले गए हैं तो उसके लिए वो एंग्शियस हो रहे हैं, एक्चुअली एंग्शियस हो रहे हैं वो। सोचो जिसने आपको मारने का अटेम्प्ट किया हो, जिसने आपके सारा खानदान आपका मिटा दिया, सारे आपके इतने 8 अक्षौणी सेना आपकी खत्म कर दी, तो उस बंदे को आप इतना प्यार करोगे, उसको कहोगे चल भाग भाग में जा, उसको तो रखोगे ही नहीं पहले आप, उसकी शक्ल नहीं देखोगे। बट नो, ही वॉज नॉट लाइक दैट। सो सेम वे शिला प्रभुपाद क्या देखते थे, छोटी सी स्पार्क, कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक छोटी सी स्पार्क भी है ना किसी में, ही विल लुक एट दैट, ही विल नॉट लुक एट एनी ऑफ द फॉल्ट्स। कोई शॉर्ट कमिंग को नहीं देखेंगे वो। चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग ना, फॉल्ट फाइंडिंग इज लाइक कि आप ओशन के सामने खड़े हो गए हो, और ओशन के सामने खड़े होकर आप देख रहे हो कि कहीं पानी दिख रहा है मेरे को। अब ओशन के सामने खड़े होकर आपको पानी देखने के लिए कोई एफर्ट करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज फॉल्ट फाइंडिंग। आप किसी के सामने खड़े हो गए, आपको फॉल्ट्स उसके अपने आप दिखने लग जाएंगे। बट उसी ओशन के अगर आप आगे खड़े हो और आपको अगर आइलैंड ढूंढना है और पीस ऑफ लैंड ढूंढना है कोई, दैट इज डिफिकल्ट। दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट। फॉल्ट नहीं, कोई एक अच्छाई, ठीक है ना। ये एक कनिष्ठ अधिकारी, तीन तीन तरह के होते हैं ना डिवोटी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है, ही लुक्स ओनली एट द फॉल्ट्स, बस, और वही डिस्कस करेगा लोगों के फॉल्ट्स। और व्हेन यू मेडिटेट ऑन ऑन अदर पीपल्स फॉल्ट्स ना, तो क्या होता है, फॉल्ट्स आप में आ जाते हैं वो अपने आप, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अदर पीपल फॉल्ट्स, तो आप में आ जाएंगे वो, क्योंकि आप उसी पे ही मेडिटेट कर रहे हो। वेयर एज मध्यम अधिकारी क्या करता है, ही लुक्स एट द फॉल्ट्स बट फॉर करेक्शन, वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है साथ में, ठीक है ना, चाहे उसके लिए उसको डांट पड़े, थप्पड़ पड़े। एक वैष्णव क्या होता है, ही, अगर एक बोलते हैं कि वैष्णव अपराध बहुत बड़ा है, ठीक है ना, किसी वैष्णव के अगेंस्ट आपने अपराध कर दिया, इट इज वेरी बिग, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जो एक वैष्णव है, वो अगर उसके अगेंस्ट कोई अपराध करता है, वो बहुत छोटा है। समझ में आया? बिकॉज वो नहीं समझ में आया, ओके। अब जैसे एक वैष्णव है, उसने किसी और वैष्णव के अगेंस्ट कुछ अपराध कर दिया, उसको ब्लास्फेम कर दिया, उसके बारे में गलत बोल दिया, दैट इज वेरी बिग ऑफेंस, ठीक है। बट सेम वैष्णव है, किसी ने उसके अगेंस्ट अपराध कर दिया, ठीक है, दोनों वैष्णव हैं, किसी ने उसके अगेंस्ट अपराध कर दिया, ही विल नॉट टेक इट एज अपराध, ही विल नॉट बी ऑफेंडेड बेसिकली, बिकॉज उसको यह है कि कोई बात नहीं, मेरे को थप्पड़ तो नहीं मारा, गाली मारी है ना, दैट्स ओके। और अगर कोई थप्पड़ मार दे तो कोई बात नहीं, थप्पड़ ही मारा है ना, गला तो नहीं काटा मेरा। दिस शुड बी द मूड ऑफ ए वैष्णवा, कि जितना भी मुझे किसी से कहीं से मिल रहा है, वो मेरा कर्मा ही होगा, उसने मुझे टोकन रिएक्शन ही दिया है, ठीक है ना। So this is how Vaishnava should deal with a lot of compassion and without ये दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। वैष्णव should be strict on himself and lenient on others, ठीक है ना। अब मैंने अपने गुरु महाराज को ईमेल डाली जब मैंने पुराना भक्ति वृक्षा में, तो मैंने उनको बोला कैसे ऐसे मैंने टेक ओवर किया है पुराना भक्ति वृक्षा, तो उनको मैंने लिखा कैसे पुराने लोग हैं, तो he sensed it, he sent me a reply, he said just one word, compassion. He said, deal with them with compassion. That's it. So that was his instruction. And then when I started a new one, अभी जो current है, उसको जब start किया, then he did not, then again I sent an email asking him permission and all that. Then he sent, do it with sincerity and you will be successful. Then he did not say compassion. ठीक है ना, उनको पता था कि जो पुराना भक्ति वृक्षा है उसमें ऑलरेडी लाइक यू आर स्पेंडिंग टाइम राइट, एंड देन
over the time you lose that compassion thing. So that's why he said compassionate, very very important quality. कृपा, करुणा, ठीक है. बट नए बीवी में उन्होंने कहा कि सिंसियर होके करो. सो फॉल्ट फाइंडिंग में क्या होता है, यू बेसिकली लुक एट अदर पर्सन विद योर ओन लेंस. अगर आपने रेड कलर की गॉगल्स लगाई हैं, आपको सब कुछ रेड दिखेगा. अगर ग्रीन लगाई हैं तो ग्रीन दिखेगा. तो उसके अवगुण आप में ही आ जाएंगे, फायदा नहीं होगा. ठीक है ना. आईटी में बोलते हैं यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट. आपने 99 प्रोजेक्ट्स अच्छे किए होंगे, लास्ट प्रोजेक्ट आपका गड़बड़ हो गया, यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट. ऐसी आपने 99 चीजें किसी के साथ अच्छी करी हैं, एक चीज बुरी कर दी, वो बंदा वो बुरी चीज पकड़ के आपसे रिलेशन तोड़ेगा या कुछ कुछ करेगा. ठीक है, विच इज रॉन्ग. युधिष्ठिर महाराज वॉज कंप्लीटली ऑपोजिट. धृतराष्ट्र की 100 चीजें उन्होंने इग्नोर करी और एक चीज जो थी थोड़ी सी अच्छी कि उन्होंने मुझे शेल्टर दिया, वो पकड़ के, दैट इज द हाइट ऑफ ग्रेटिट्यूड. तो ग्रेटिट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. जितना बोलो ग्रेटिट्यूड पे कम है. अब मैं क्या था, मैं आई वॉज लाइक द यंगेस्ट इन द हाउस. ठीक है, सो एवरीथिंग वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड. यंगेस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड. तो मुझे ग्रेटिट्यूड का जी भी नहीं पता था कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले. एवरीथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, सबने दे दिया. और सब सभी एल्डर्स थे, बड़े थे, प्यार देते हैं, पैसा देते हैं, चीजें लेके देते हैं, तो ठीक है. बट बाद में पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड. ठीक है. ध्रुव महाराज को ध्रुव प्लेनेट, ठीक है ना, ध्रुव तारा, पोल स्टार दिया. और उस पोल स्टार पे उन्होंने राज किया कितने सालों तक, किसी को आइडिया है? 36,000 ईयर्स. 36,000 साल. 36,000 साल ध्रुव तारा पर किया. उसके बाद वैकुंठा प्लेन आया, उनको कहा चलो जी आप अब वैकुंठा आइए. यू नो व्हाट ही सेड, वेयर इज माई मदर. 36,000 साल के बाद भी उनको याद था कि मेरी मदर, क्यों, मेरी मदर ने मुझे ये पाथ दिखाया भक्ति का, उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड बनता है मेरा. ठीक है, वो कहाँ पर है? उन्होंने कहा वो ऑलरेडी बिठा लिए चाहिए. विष्णु दूतों ने कहा कि उनके लिए वो देखो अलग से प्लेन ऑलरेडी रेडी है, उसमें बैठी हैं. ठीक है, वी शुड शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एनीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन अवर भक्ति. ठीक है, हमें हमारी फर्स्ट बुक जिसने दी, हमारी फर्स्ट माला जिसने दी, जिसने हमें 16 माला के लिए इंस्पायर किया, जिसने हमें पहली मंगला आरती अटेंड जिसके साथ करी हमने, ठीक है, वट जिसका हमें फर्स्ट फोन कॉल आया कि आ जाओ भक्ति वृक्षा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, वट जो भी कहीं ये हमारी लाइफ में, और नॉट ओनली फर्स्ट एक्चुअली लेटर ऑन एज वेल, कि जो भी बंदे हमारी लाइफ में आए हैं, जिनके कारण हम आज जो सुन पा रहे हैं भागवतम, जो हम कर पा रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, उनके लिए वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड. ठीक है ना, जिन्होंने हमें रैंप अप किया है, ईच एंड एवरी वन. ठीक है, लोग क्या करते हैं अपने फर्स्ट शिक्षा गुरु को, दे जस्ट रिजेक्ट, छोड़ो यार ये तो क्या है, इसने बहुत तंग किया हमें. ठीक है, whereas if we are without gratitude we are doomed. This is what युधिष्ठिर महाराज is teaching us. तो दो चीजें, gratitude, ठीक है, and fault finding. We should not have दोष दर्शन. क्यों दोष दर्शन करेंगे? हम उसका तो क्या नुकसान होगा, हमारा खुद का ही नुकसान होगा. वो सारे अवगुण हमारे अंदर आएंगे और हम और डूम्ड होंगे, हम और डिटीरियोरेट होंगे. और अगर हम अच्छे पे करेंगे वी विल बी एबल टू लर्न एज वेल. अरे वाह, क्या क्या उसमें क्या कितनी अच्छी क्वालिटी है, उसमें 10 बैड क्वालिटीज हैं, एक अच्छी क्वालिटी आपको दिखी. ठीक है, तो आपने वो इम्बाइब करी एंड यू विल ट्राई टू इनकलकेट दैट इन योर लाइफ. यू विल बी गुड ना, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी आई, रादर देन वो 10 बैड क्वालिटीज पे मेडिटेट करने से, है कि नहीं. so that is the point. All right, I think 7:55 हो गए. Any comments, questions? We'll stop here. वही लिखा है ना प्रभुपाद ने, अ डिवोटी नेवर फाइंड्स अ फॉल्ट विद अदर्स बट ट्राइज टू फाइंड हिज ओन. अपने फॉल्ट देखने चाहिए हमें, एंड दस रेक्टिफाई देम एज फार एज पॉसिबल. दूसरों के दोष मत देखो, अपने देखो. और फिर अगर अपने पहले तो दिखते नहीं है ना अपने, तो पहले अपने देखोगे फिर उन पे एक्शन लोगे. आर हमने पढ़ा था ना क्लास में भी. आर क्या है? फर्स्ट आर इज रिकॉग्नाइज. पहले रिकॉग्नाइज तो करोगे कि हाँ है, फिर उन पे रेक्टिफिकेशन होगी, रेक्टिफिकेशन भी नहीं, फिर उन पे रिमोर्स होगा, रिमोर्स के बाद रेक्टिफिकेशन होगी.
So yeah, we have to look at our 4 hours, I think. Reunion. ऐसा कुछ था. reunion. Yeah, 4 hours. Fourth hour is reunion. Yes, then you will have a reunion with the Lord. All right. So any questions, comments? नहीं, all good. चलो, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhu. Thank Hare you for Krishna, the. Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. हरे Hare कृष्णा. Krishna.